Today we are discussing about the grammar item. That the totally 6 items are there as per our intermediate second year standard. So today we are discussing about the question number 13. That means the item number 3rd in grammar. That's the name is a samas. In previous classes we are discussing about the two that samas, your grammar item, that's a letter writing. Another one is a sandhi vichhed, means word division. Now we are present here discussing about samas. So the previous first part we are completed about the samas topic only. In that topic, in this topics, now we are discussing second part of the samas. In first part of the samas, we are discussing about the definition of samas. Means what is the samas, how to we are identified, how to divide the samas, and what kind of what type of samas are there. Mean totally 6 type of samas are there in Hindi literature. The out of them, the what are they? Here we are discussing here. That's avyayi samas. In this period we are discussing about the first part, first kind of samas. That out of 6, this is the first avyayi samas is the first samas. Okay. The same way we are discussing about the second of second samas of the Hindi literature called as Tatpurusha samas. About these two samases we discussed today in this class. प्रिय छात्रगण, आज शुभोदय. आज के इस विषय के इस अंतर में समास से संबंधित, मैंने समास जो व्याकरण से संबंधित एक भाग है, तो इस समास के संबंधी विश्लेषण और उसके प्रकार के बारे में मैंने पिछले अंतर में भाग नंबर समास का भाग नंबर 1 के अंतर्गत देखा गया, चर्चा की गई थी, जिसमें समास किसे कहते हैं और समास के कितने प्रकार हैं, और इस प्रकार से उन प्रकारों के अंतर्गत समास का पहला प्रकार जो होता है यानी अव्ययी समास, और दूसरा प्रकार जो होता है ये तत्पुरुष समास. इस प्रकार इस अंतर में दोनों समासों के बारे में यानी सविस्तार सा विश्लेषण देखा जाएगा. तो जिसमें अव्ययी समास के अंतर्गत यानी जो देखा जाता है, हर मुख्य शिष्य विषय का संक्षिप्त परिचय देता है. अव्ययी का माने जिसका कोई मूल्य नहीं. मूल्य नहीं का माने लिंग वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे वाले को अव्ययी समास कहते हैं. जिसने कि गिवन ए वन हिंट फॉर आइडेंटिफाई दिस समास. मीन which word is given, the term which is given by you in your examination for identification, identify the samas. So that words no very difference no the change in that gender and the ling, the gender and the numbers, that's called as a avyayi samas. Means both of the genders, both of the numbers you are using that same word. Means that word is which is given, it is using this no gender and no change in number 2. Like this, just a definition of this gender means क्या होता है समास है, जिस समास के पूर्व पद किसे कहते हैं? The before of the term. When a senseful word can be divided into a senseful group, mean word. There is a word called as your first पूर्व पद. यानी पूर्व प्रधान हो, पूर्व पद जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्ययी हो, which condition is there? Here should be applied. Here which word the term of the first is अव्ययी word, और इसके साथ में ये पूर्व पद का क्या प्रधानता होना चाहिए, उसे अव्ययी समास कहते हैं.
फिर से यहाँ पर अव्ययी समास की परिभाषा के रूप में देखा गया। तो जिस समास का पूर्व पद, समास का पूर्व पद ये सामासिक शब्द को पीछे अंतर में देखा है। सामासिक शब्द को यानी समास विग्रह के रूप में विभाजन किया। समास विग्रह जो होता है, समास विग्रह क्या है, दो भागों में है। मेन पूर्व पद, यह उत्तर पद है ना। तो पूर्व पद का महत्वता होनी चाहिए, प्रधान होना, और ये वाला दिया गया शब्द का ये पूर्व पद में है सो वो अभी अव्ययी रूप हो तो उसको हम अव्ययी समास कहते हैं। अव्ययी समास के लिए जो उत्तर पद समास विग्रह के अंतर्गत, तो उत्तर पद पूर्व पद उत्तर पद जो होते हैं उसमें वो पूर्व पद का यानी प्रधानता होनी चाहिए, और वो दिया गया शब्द भी कैसे अव्ययी रूप हो तो तब उसको अव्ययी समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हर दिन, जैसे एक वन ऑफ द वर्ड हर दिन मीन्स डेली। The daily means this singular, the same, the plural, same. This word is used in male gender, the same, and female gender also same. Means the girl come to class daily. Daily she come to class. And she come to class, he come to class. The boy the boy come to school. Come to school regularly. Girl come to school regularly. Boy or girl, singular, boys come to school regularly, girls come to school regularly. Means in the what you identify here, the regularly word term should be used both male and female gender, singular and the plural also. So that term is the important here. हर दिन मेन प्रतिदिन यानी रेगुलरली या डेली, यानी आमरण जैसे मृत्यु तक, माने यहाँ पे जो है आमरण का प्रयोग किया गया। आमरण प्रयास करने लगा, माने आमरण का माने मृत्यु तक मीन स्टार्टिंग टू अप टू डेथ, मीन्स देयर इज नो गैप ऑफ या रिलीविंग ऑफ दैट आमरण। या जैसे इसमें यथा और अव्यय है। यथा का माने as this that मूल वर्ड माने यह बेस वर्ड, एंड दैट्स अव्यय मीन जिसका निश्चित अर्थ नहीं होता, इसको अव्यय कहते हैं। अव्यय जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति माने यह रिपीटेड द वर्ड, सो वह अव्ययी भाव समास है। We are again another words here. What is the definition of the अव्ययी समास mean? The one of the word is very important. This word can be repeated and again. It's known as अव्ययी समास। जैसे उदाहरण के रूप में दिनों दिन, बार बार है, दिनों दिन माने डेली मीन्स घर घर, ये भी घर बोलने लगा, घर भीख मांगने लगा, भिखारी घर भीख मांगने लगा, लड़की घर फिरने लगी, यानी लड़कियां घर आने लगे, लड़के घर जाने लगे। मीन्स दिस ऑल आर दैट रिपीटेड वर्ड्स एज नोन एज वर्ड, द टर्म इज आल्सो एज व्हाट वन अव्ययी समास। यहाँ पर एक शब्द पूर्व पद प्रधान हो और वो भी अव्ययी का रूप हो तो उसको अव्ययी समास कहते हैं। दूसरा वाला जो दिया गया समास में शब्द जो बार बार रिपीट होता है, बार बार आवृत्ति होती है, आने लगते हैं, तो उसको हम अव्ययी समास भी कहते हैं। जैसे कुछ अन्य उदाहरण जो होते हैं, आजीवन माने जीवन भर से, यथाशक्ति मीन शक्ति के अनुसार, लड़का यथाशक्ति प्रयास करने लगा, खिलाड़ी यथाशक्ति खेलने लगा। मीन जैसे एक सोल्जर यथाशक्ति का माने एज पर हिज पावर, मीन ही कैन डू द वार, मीन्स डिफेंड द एनिमीज। सो भरपेट खाया, लड़का भरपेट खा लिया, लड़की भरपेट खा ली, लड़के भरपेट खाने लगे, लड़कियां भरपेट खाने लगी। इस प्रकार से या पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, एनीवेयर द टर्म विल बी द सेम यूज्ड इन मेल एंड फीमेल, इन सिंगुलर एंड प्लूरल आल्सो। ओके, प्रतिदिन नहीं हर दिन, जैसे उदाहरण के रूप में लड़का प्रतिदिन खेलने लगा,
है ना, लड़की प्रतिदिन खेलने लगी, लड़के प्रतिदिन खेलने लगे, लड़कियां खेलने लगी। इससे हर दिन प्रतिदिन ये होता है, ये इसका जिसमें कोई लिंग वचन में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको अव्ययी समास कहते हैं। डर के बिना, विदाउट एनी फियर, without fear means brave, brave means without any fear. Like this, the boy is very brave, girl is very brave. Brave means the term brave word is using both male and female, singular and plural, same as it is. So this type of words are known as the अव्ययी समास। यानी इस प्रकार के प्रयोग में आने वाले शब्द जो होते हैं अव्ययी समास के अंतर्गत हम पहचान करेंगे। अव्ययी समास का पहचान क्या होता है? जो जिस दिया गया समास का विग्रह रूप में पूर्व पद है ना और उत्तर पद जो होता है उसमें पूर्व समास विग्रह के अंतर्गत दोनों शब्द आते हैं। दोनों शब्दों में पहला शब्द जो होता है प्रधानता देते हुए दूसरे शब्द का अव्यय का रूप है। पहला वाला शब्द क्या होता है? मूल होता है, तो मूल का माने बेस होता है, तो ऐसे वाले को हम अव्ययी समास कहते हैं। और दिया गया शब्द के अंतर्गत कोई लिंग वचन में परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे वाले को अव्ययी समास कहते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में दिया गया है। राइट, दिस ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द अव्ययी समास। Now come to the point in that second that samas out of 6, this is the second one, tatpurusha samas. Tatpurusha, half of the answer include question only. Here is the tatpurusha samas. समास के अंतर्गत किस समास है? ये तत्पुरुष है। मैंने यहाँ जो अव्यय का माने जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है उसको हम अव्यय कहते हैं। जैसे समास का उत्तर पद हो, उत्तर पद प्रधान हो, हियर इज द पूर्व पद, हियर इज द उत्तर पद, है ना, प्रधान हो। ये प्रधानता उत्तर पद की है, यहाँ प्रधानता जो होती है उत्तर पद की बताई, यहाँ पर पूर्व पद की प्रधानता होती है। तो ऐसे वाले पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता है, पूर्व पद की क्या होता है? गौण होता है। मीन इट्स ए सीक्रेट, मीन इट्स ए साइलेंटेड वर्ड, मीन तुलसीदास कृत माने तुलसीदास द्वारा कृति माने रचित किया गया, माने इस प्रकार का रूप होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। तो इस प्रकार विभक्तियों के नाम के अनुसार विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति वर्ड मेन तत्व है, ये यहाँ पे का, के, की, ये जो है कारक चिन्हों के अंतर्गत आते हैं। विभक्ति भी इसका जो नीचे दो अर्थों, दो शब्द या वाक्यों के बीच जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उस वाले को विभक्ति कहते हैं। इस विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद बताए गए? 6 बताए गए, 6 बताए गए। इसके भेद हैं कितने? विभक्ति के अनुसार किसके? तत्पुरुष समास के कितने भेद बताए गए? 6 भेद हैं। इससे कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार द हाउ मेनी ईयर द टोटली 6 टाइप ऑफ क्या बताए? तत्पुरुष समास है। तो इसमें जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे ये उदाहरण है, यह उदाहरण ये जो बताया विराहट है ना, गिराहट का होने क्या होना है? गिराहट का मतलब जैसे दैट वैल्यूज विल बी डिक्रीजिंग। गिराहट मैंने यहाँ पे गिराहट, गिराह को काटने वाला, गिराह को काटने वाला, गिराह का माने द परसेंटेज को लोअर करने वाला, डाउन करने वाला जो होता है, ऐसा शब्द है गिराहट। यानी हटने का मतलब कट जाने का रूप है। और यहाँ पर और दूसरा उत्तर पद गिराह को काटने वाला, विद द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वन इज द डिक्रीजिंग फोर्स, मीन हियर इज किसको डिक्रीज कर रहे हैं? गिराह को डिक्रीज करना है, जिसे गिराहट है। इससे मन चाहा, यानी कि मन से चाहा हुआ, माने यहाँ पे चाहने का रूप बताया गया। मीन्स हॉटली यू आर लविंग, और यू आर लविंग टू दैट फिजिकली, द मेंटली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, लाइक दिस वन। हियर कारण मीन एनी वन ऑफ द रीजन देयर,
रीजन को बताने वाला तत्पुरुष होता है यह है। और यहाँ पे कर्म को बताने वाला, कर्म माने subject and object, mean this is given that importance to the object, here is the importance to the reason को बताने वाला। और इसके बाद संप्रदान का माने that combination, जिसमें रसोई घर, here is a related mean किसको related है, इससे घर है, किसका घर है, यानी यहाँ पर रसोई घर है ना, जैसे रूम, here room for the bedroom, room for the washroom to wash, and here is a classroom, this room for class, like this one is a relation, here is a reason, here is that one type of that tatpurusha is a karmadhara samay, objectives, as per objective, as per that reason, as per the link, means the combination, is this all are the different type of as per विभक्ति के अनुसार इसको 6 विभागों किया है। जैसे मन चाया, रसोई घर, रसोई के लिए घर, इस प्रकार देशानी क्या है, देश निकाला, देश से निकाला गया, मीन इस प्रकार से ये वाला जो व्यक्ति देश निकाला है, देश से निकाला गया है, यहाँ पे अपादान है, अपादान का रूप में है, जिसका कोई संबंध निश्चित रूप नहीं है, ने इसका रूप निर्धारण किया जाता है। तो ऐसे वाले को जैसे बताया, देश निकाला, देश से निकाला गया, है इस प्रकार से मीन पर्टिकुलरली यू शुड अवॉइड दिस द पर्सन, है इस प्रकार बताया। संबंध तत्पुरुष मीन correlation between the two persons or things anywhere, है गंगा जल, यहाँ पर is one of the, गंगा is one of the word term and jal is one of the sensible word, means related to that one of the कारक को जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार से इसको संबंध कारक, यहाँ पे संबंध कारक में तत्पुरुष, मैंने दिस ऑल दैट 6 आर नोन एज तत्पुरुष, इसको संबंध कारक तत्पुरुष। और इसी प्रकार जो होता है कारण कारक, संप्रदान कारक तत्पुरुष, इस प्रकार के लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सिंपली यू राइट एज यू शुड आइडेंटिफाई इज अ रिलेटेड एज अ रीजन, यू आर डिवाइडेड द एज पर द रीजन, एज पर द रिलेशन, और लाइक दिस वन, सो इज कॉल्ड एज ए तत्पुरुष समाज। इस प्रकार से कोई कर्म से संबंधित, कारण से संबंधित, और इससे संप्रदान से, अपादान से, इस प्रकार किसी से संबंधित रूप से विभाजन किया गया शब्द जो होता है वो तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास के अंतर्गत संबंध कारक का जो होता है रिलेशन, कोरिलेशन का संबंध जल, मैंने गंगा जल, गंगा का जल, इस प्रकार से गंगा जल जैसा दिया जाता है तो आपको इसको गंगा का जल जैसा लिखना है। ये माने इसका नाम जो होता है गंगा का जल, ये तत्पुरुष समास है। You need not write to the vigraha expand, means is an object, a predicative, means you not divide that what is the meaning of the word, but you are mentioned the what type of the samas is there. Okay, just given the example in your examination, Ganga Jal, it's a what type of samas, the out of 6 samases you should write the name of any one which you are related, the suitable to this samas, means simply you write we identify and write the as a tatpurush samas. Why? Because this is the related two combinations of Ganga and Jal, so it's called as a combinative samas. नेक्स्ट अधिकरण तत्पुरुष, नगरवास, नगर में रहने वाला, वास करने वाला, मीन नगरवास माने नगर, मीन ग्रामीण, मीन ग्राम का रहने वाले, यानी ग्रामीण मीन शहर, यानी देशवासी, देश में रहने वाले, और उसके बाद ग्रामीण, ग्राम में रहने वाले,
और इसी प्रकार जो होता है नगरवास यानी टाउन पीपल, village people, state people, like this one, you should be decide as per their living places known as तत्पुरुष समास। इसका तत्पुरुष का रूप इसका विधान किया। अव्ययी के अंतर्गत क्या बताया गया, दिए गया शब्द का लिंग वचन में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको अव्ययी कहा गया। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने प्रत्यय यानी आजीवन, आजीवन का माने जीवन भर, नहीं जैसे लड़का हो या लड़की हो, लड़का आजीवन चलने लगा, मैं पढ़ने लगा आजीवन और इस तरह लड़की आजीवन कार्य करने लगी, माने समाज की सेवा करने लगी। लड़के हो या लड़कियां, इस प्रकार जो दिया गया वाक्य के अंतर्गत टर्म में को आजीवन का टर्म कोई चेंजेस नहीं होता, ऐसे वाले को हम जो दिया गया शब्द का लिंग वचन में परिवर्तन नहीं होता उसको अव्ययी कहते हैं। और तत्पुरुष के अंतर्गत जो पुरुष से संबंधित वो गुण जो होते हैं तो ये वाला जो होता है पर्टिकुलर वन थिंग, योर मेन योर नेम और नेम ऑफ द प्लेस, पर्सन और थिंग इज रिलेटेड टू दैट, सो नोन एज तत्पुरुष समास। ओके, दिस एग्जाम्पल इज मन चाहा, मन को मन से चाहने वाला। इस तरह से रसोई घर, रसोई के लिए घर, मेन पर्टिकुलरली इज रिलेटेड मीन्स या डिसाइडेड सो सर्टेन प्लेस और थिंग प्लेस। ओके, सो इस प्रकार से नगरवास, नगर में रहने वाला माने वास करने वाला। इस प्रकार यहाँ पर बताया गया समास के यानी कुल 6 प्रकार हैं। उन 6 प्रकारों में मेन 2 प्रकारों का यहाँ पर विश्लेषण किया गया है। पहला जो समास है अव्ययी समास है, दूसरा वाला समास है तत्पुरुष समास है। इस प्रकार 2 समासों का कॉम्बिनेशन में देखा गया। जो विग्रह रूप जो होता है पूर्व पद उत्तर पद जैसा होता है, ये सामासिक शब्द को सामासिक विग्रह के रूप में विभाजन किया गया। सामासिक शब्द, सामासिक शब्द कैन डिवाइडेड into सामासिक विग्रह। सामासिक विग्रह कैन हैविंग दैट बोथ 2 वर्ड्स मीन पूर्व पद उत्तर पद। ये पूर्व पद में इंपॉर्टेंस है तो अव्ययी समास है, ये उत्तर पद में है तो ये तत्पुरुष समास है। ये पूर्व पद का रूप है, ये अव्ययी है, माने ये अव्ययी है, अव्ययी और ये तत्पुरुष। इसकी प्रधानता होनी चाहिए। किसकी प्रधानता? वो पूर्व पद की प्रधानता है, प्रधानता है तो यह अव्ययी समास है। उत्तर पद की प्रधानता है, यह तत्पुरुष का समास है, उत्तर पद का। ओके, इस प्रकार से इसको हम आइडेंटिफाई करना, इस तरह इसका निर्धारण करना चाहिए। ये आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले समास के संबंधी 2 भेदों के बारे में बताया। ये समास जो होते हैं आपको 8 देंगे, 8 में से यहाँ पे बताया गया यू आर टोटली गिवन दैट 6 क्वेश्चंस एज ए ग्रामर आइटम। वी आर क्वेश्चन नंबर 11 to 16। यार 11th क्वेश्चन एज ए लेटर राइटिंग, इसको हम पत्र लेखन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 या आउट ऑफ 2 attempt any one here for 5 marks. Here is the 12 Sandhi Vichhed. Here is given the 12. Out of 12, here should divide the one of the single sensible word, 2 sensible words as a Sandhi Vichhed. Yeah, out of 12, you should attempt at any 8 only. For each containing 1 mark, here 12 marks. Now the 13th, here given question, here given the asking the samas. Yeah, as per that, out of 8, here given is 8 questions, 8 terms are given. Here out of 8 you are attempt any 5. Here each containing 1 mark, 5 into 1 is equal to 5 marks. इस प्रकार से समास के संबंधी 8 समास देंगे तो समासिक शब्द, तो उसका समास का नाम मात्र लिखना है तो आउट ऑफ 8 में से इसको 5 मात्र इसके 5 अंक होंगे। इस प्रकार इसका या कुछ संदर्भ में इसको 6 अंक का भी निर्धारण किया जा सकता है और या 5 मात्र लिखना है। ओके, ये है समास के संबंधी, यह अगले अभ्यास के अंतर्गत देखा है, जिसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
व्याकरण वो विषय है जो जब तक आप अभ्यास जितना करेंगे उतनी स्पष्टता आती है, जिसके अंतर्गत केवल सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से व्याकरण का अनुभव नहीं होगा। अभ्यास जितना करेंगे तो उतना सा आपको ये व्याकरण के विषय के अंतर्गत निपुणता आती है। अब उस चीज पर इफ यू आर टू प्रैक्टिस यू गॉट क्रिएट योर माइंड एज ए डाउट। इफ यू आर हैव द डाउट you can ask the faculty members and clarify your doubts. If you are without your practicing, you are reading or just you are your hearing means they without any practice there is no confidence, means concentrate the mind here as a reading or hearing, but should do practice. Okay, thank you.